Good morning, ma'am. Good evening, ma'am. Hello, everyone.
Hello, good evening, everyone. Hello, Good evening, ma'am. good evening, guys. Good evening, everyone. Okay, now, Hello, good evening, ma'am. good evening. Very good evening, Renu. Good evening, Yes, Lakshmi ma'am. ma'am. Good evening, Satvik. So now, let's start the class. And before I start class, what we were doing in our last class? Yeah. Can you tell me what we were doing in our last Ma'am, we class? are doing past perfect tense. Okay, past perfect tense. Okay, fine. We'll be doing it further. But before that, I want to give you a little vocab. It's been many days you guys haven't got any vocab from my side. So I want to give you a few daily use sentences which you guys can use confidently without any trouble. So first sentence is when you guys want to speak, तुम बातों को बड़ा चढ़ाकर बोलते हो. How will you speak? तुम बातों को 30 minutes. चढ़ाकर बोलते हो. Yes. Who will give me the answer? तुम बातों को बड़ा चढ़ाकर बोलते हो. Yes, guys, reply. Lakshmi ma'am, Satvik, and Renu. Yes, tell me. What is the English? तुम बातों को बड़ा चढ़ाकर बोलते हो. Can you give me the answer? I don't know, madam. Actually, Okay, fine. You are telling long. Okay. So Renu, the answer is you ham up the story. अब किसी से ये कहना हो तो बातों को बड़ा चढ़ा के बोलते हो तो आप कहेंगे Sorry, you ma'am. ham up the story. You ham up these stories. Very good. You ham up the story. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. Now the next one. Next is जब आपको ये कहना हो मेरी चाय या मेरी कॉफी या मेरा खाना कोई भी चीज गरम कर दो. How will you speak? मेरी चाय गरम कर दो. How will you speak? मेरी चाय गरम कर दो. This is a very common day-to-day life sentence. मेरी चाय गरम कर दो. How will you speak that? You Yes, guys, say something. Heat up my tea. Heat up my tea, right? Okay, चलिए आपको एक अच्छा सा प्यारा सा वर्ड देते हैं. That is न्यूक माई टी. तो आप कोई भी खाने पीने की चीज गर्म करनी हो, ऑलरेडी पकी हुई है, आपको खाली गर्म करनी है, यू विल से न्यूक माई टी, कॉफी और एनीथिंग. न्यूक माई लंच, न्यूक माई डिनर, न्यूक माई राइस, जो भी कहें. Got it, guys? Got it? Why you guys are not active? ma'am. got it, madam. Actually, here is a very voice, so I am mute. It's not very, it's here is so much voice, or Ah. you can say noise. Here is so much noise. So much noise. Hmm. So I am mute. I am mute. Actually, is a Garva program. Okay. Navratri is Mhm. start. No? Got it. Got it. Got it. Got it. Yes. So I'm not getting any noise, Lakshmi ma'am. I'm not Okay. getting any noise. Okay, okay, It's also silent from your side. okay. Okay. So now, Satvik, is it clear with you? Yes, ma'am. Hmm. Yes, Now ma'am. third, when you guys say आपका इस बारे में क्या ख्याल है? Let's say कोई सीरियस डिस्कशन चल रहा है, कोई सीरियस टॉपिक चल रहा है,
ठीक है, सब अपनी अपनी बातें रख रहे हैं और अब मैं आपसे पूछ रही हूँ आपका इस बारे में क्या ख्याल है या आपका इस बारे में क्या कहना है। तो कैसे कहेंगे, क्या कहना है या क्या ख्याल है, हाउ विल यू स्पीक, कैसे बोलोगे आप? या गिव मी What's your opinion? व्हाट्स योर ओपिनियन। और कुछ रेनू? What's your decision? ओके, डिसीजन भी एक फैसला होता है। फैसला। हाँ, तो यहाँ फैसला नहीं पूछ रही आपसे, आपके विचार पूछने की कोशिश कर रही हूँ। आप इस बारे में Think, क्या सोच? think, think. What's your Your, thought? your thought or your think. चलिए, इमेजिन करिए हम लोग हमास और इसराइल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आप अपनी अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, आपके हिसाब से इसराइल ठीक है, किसी के हिसाब से हमास ठीक है। किसी के हिसाब से इसराइल ठीक है, किसी के हिसाब से हमास ठीक है। तो अब आप मुझसे पूछोगे ज्योति मैम आपका क्या ख्याल है इस पर, तो आप मुझसे पूछोगे मैम व्हाट्स योर टेक ऑन इट, व्हाट्स योर टेक ऑन इट। तो किसी भी सीरियस मुद्दे पे किसी का विचार जानने की कोशिश करेंगे तो उससे क्या पूछेंगे, बोलिए जरा। What's What's your take on? your take on it? हाँ जी, तो अगर कोई भी डिस्कशन, कोई भी मुद्दा, कोई भी बहस चल रही है और आपको ये पता करना है, आपको ये पता करना है कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है, तो आप कहेंगे व्हाट्स योर टेक ऑन। नाउ नेक्स्ट, आपका जब आप किसी बहुत खास काम में बैठे होते हैं, बड़ा मजा आ रहा होता है, तो आप कहते हैं अरे मेरा तो समय की तरफ ध्यान ही नहीं गया, अरे समय तो यूं ही निकल गया। तो आपके मुंह से निकलता है अरे मेरा तो समय की तरफ ध्यान ही नहीं गया, घड़ी की तरफ ध्यान ही नहीं गया। मतलब हमने कोई काम 4 बजे करना शुरू करा या 2 बजे करना शुरू करा और काम में इतना मजा आया कि कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। ठीक Ma'am, है। ma'am, can you show? व्हाट Ma'am, डू आई can you शो यू, show screen? व्हाट डू आई शो यू बेटा? Ma'am, first screen. फर्स्ट Ma'am, स्लाइड, previous screen. फर्स्ट स्लाइड। Madam, I can speak. Please see in the previous slide. नो 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 नो, प्लीज शो मी द प्रीवियस स्लाइड, नॉट सी मी, Okay. शो मी। Okay. Please show me previous slide. बिल्कुल, वेरी नाइस, वेरी क्लियर। Yes, ma'am. ओके, कैन आई मूव ऑन सात्विक? Ma'am, 1 minute. Ma'am, can you repeat past perfect tense? Yeah, I will do that. After these English sentences, I will repeat. Thank you, ma'am. Are you done? Done. Yes, ma'am. So मेरा तो घड़ी की तरफ ध्यान ही नहीं गया, मेरा समय की तरफ ध्यान ही नहीं गया। How will you speak? What's your take on it? नहीं, ये तो तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है। हम कर रहे हैं मेरा घड़ी की तरफ ध्यान ही नहीं गया। I didn't, हम्म, I didn't pay attention to the clock. ओके, नॉट बैड। कुछ और ट्राई करिए। I forgot the time. ओके, चलिए, लेट मी टेल यू इसका। आई फॉरगॉट द टाइम नहीं होगा बेटा, इसका आंसर होगा आई लॉस्ट द टाइम ट्रैक, आई लॉस्ट द ट्रैक ऑफ टाइम। किस तरीके से आप बोले, आई लॉस्ट द ट्रैक ऑफ टाइम, गॉट I इट, don't, आई Got लॉस्ट द ट्रैक ऑफ टाइम। ma'am, lost क्या क्यों आएगा?
क्योंकि इसमें तो हम खोया थोड़ा ना हम समय। नहीं नहीं, यहाँ पे लॉस्ट इसलिए आया क्योंकि आप किसी काम में इतना खो गए कि आपने हो समय गए। को भुला ही दिया। काम में खो गए कि समय को भुला दिया। Got it? यस got मैम। it. So I lost the track of time. Right? Now Right. can we do fifth? Can we do fifth? Yes, ma'am. Okay. So fifth one is when you guys say उसने मेरी मेरी बातों को इग्नोर कर दिया, उसने मेरी बातों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, उसने मेरी बातों को इग्नोर कर दिया या ध्यान ही नहीं दिया। मैंने कुछ कहा और उसने उस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, फुल ऑन इग्नोर मारा मुझे। कैसे कहेंगे? He didn't acknowledge me. ओके, और कुछ? चलिए आपको यहाँ पर आप कहो he turned a blind eye. He turned Ma'am, a blind eye. तो आप इस तरीके से बहुत एडवांस्ड इंग्लिश बोल सकते हो। He turned a blind eye. He turned a blind eye. Yes, he turned a blind eye. प्लान है। A blind eye. Got it? Got it. The last but not least, ये आपकी आज का लास्ट है, and the last one is one second. Just give me a second, guys. Just one second. It's not typing, it is showing some trouble. One. Okay. So now your next one is चलो अब किसी और बात पे बात करते हैं या टॉपिक चेंज करते हैं। एक बात पे कई बार होता है डिस्कशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हमारी बहस चालू हो जाती है, हम लोग उस चीज पे लड़ने लगते हैं। तो हम उस बेहतर है कि लड़ाई को बढ़ाने की बजाय चलो अब कोई और बात करते हैं या अपनी बात चेंज करते हैं। सो कैसे बोलोगे चलो कोई और बात करते हैं? प्लीज चेंज योर टॉपिक। ओके फाइन, समथिंग एल्स? He this topic is changed. ठीक है, अब इसको आप बोलेंगे लेट्स स्विच गियर्स। कभी भी कोई भी बात चल रही है और वो बहस में बदल गई है या वो बात में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है या वो बात किसी को अच्छी नहीं लग रही है और आपको उस टॉपिक को उस बात को बदलना है, तो आपके मुंह से निकलता है चलो कोई और बात करते हैं। सो लेट्स स्विच गियर्स। इज इट क्लियर? मैम लेट्स ये स्विच गियर्स। बोल सकते हाँ जी बेटा। हैं, मैम ये बोल सकते हैं लेट फिश फिक्स द सिचुएशन। नहीं बेटा देखो, सिचुएशन बदलना हमारे हाथ में नहीं होता कभी भी। हम बातें बदल सकते हैं। अभी हम पॉलिटिक्स की बात करें, पॉलिटिक्स पे झगड़ा चालू हो गया तो चलो हम स्पोर्ट्स की बात चालू कर दें, लेकिन सिचुएशन बदलना इज नॉट इन अवर हैंड, राइट बेटा? तो लेट्स स्विच सिचुएशन, ये कोई सेंस ही नहीं बनता। यस हम कह सकते हैं लेट्स स्विच गियर्स, विच मीन्स कि चलो गियर्स, देखो गाड़ी के गियर्स चेंज करना हमारे हाथ में है, पर अगर तुम्हें कश्मीरी गेट जाना है या तुम्हें मसूरी जाना है तो बेटा रास्ते कैसे बदल सकते हैं? रास्ता तो जो मसूरी पहुंचाएगा वही पहुंचाएगा। हाँ यस मैम। ये हमारे ऊपर है, हम स्पीड में जा रहे हैं या स्लो जा रहे हैं।
तो हम गियर्स बदल सकते हैं, बातें बदल सकते हैं, रास्ता यानी सिचुएशन को हमारे हाथ में नहीं है। गॉट इट साथी? Yes, ma'am. Got it. Wonderful. So guys, you have learned, you have learned 6 daily use sentences. First is जब कोई बातों को बढ़ा चढ़ा के बोले, you ham up the story, you are hamming up the stories, कुछ भी बोलो। मम्मी से कहना है मम्मा जरा इसे थोड़ा सा गर्म कर दो, और थोड़ा सा गर्म करने का मतलब होता है न्यू। तो न्यू के एक वर्ब है। The story. अब जैसे आपको कहना हो मैं ना खाना गर्म कर रही हूँ, आई एम न्यूकिंग द डिनर। डिनर आपने 8 बजे बना के रख दिया, अब फिर ज्योति मैम की 8:30 Milking. बजे क्लास थी, है ना? हाँ, न्यूकिंग बिल्कुल कर सकते। 8:30 बजे ज्योति मैम की क्लास है, 9:30 बजे खाना खाओगे तो ठंडा हो जाएगा 1 घंटे में। सो आई एम न्यूकिंग अप, न्यूकिंग माई डिनर, आई एम न्यूकिंग माई lunch, I'm nuking my Chapati. breakfast, chapati, I'm nuking my veggie, my rice, my pulses, जो भी आप गर्म करो। अच्छा, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? व्हाट्स योर टेक ऑन? सीरियस मुद्दों के लिए बात करना, फालतू की चीजों के लिए नहीं, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट था आपका मेरा समय की तरफ ध्यान ही नहीं गया, किसी काम में मैं इतना खो गई, सफाई करने में, बातें करने में, एंजॉय करने में, शॉपिंग करने में। लेडीज अगर शॉपिंग करने जाती है ना तो निकलती सुबह है 11 बजे, और रात को जब अंधेरा हो जाता है ना 6-7 बजे, तब उन्हें आ जाता है 3 hours भी निकल गया, पता ही नहीं चला पूरा दिन निकल गया। सो इट्स आई लॉस्ट द ट्रैक ऑफ टाइम। और अगर किसी से कुछ कह रहे हो और वो आपको फुल ऑन इग्नोर मार रहा है, ही टर्न्ड अ ब्लाइंड आई, ध्यान ही नहीं दे रहा मेरी तरफ, और किसी टॉपिक पे बहस छिड़ जाए, आपको वो बात ही खत्म करनी है, दूसरी बात करनी है जिससे नॉर्मल हो जाना है, तो लेट्स स्विच गियर्स। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Got it, Yes, ma'am. ma'am. चलिए, अब आता है आपका पास्ट टेंस। ओके, अब सबसे पहले बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की, जो कि आपने मुझसे पूछा, ठीक है? पास्ट परफेक्ट इज ऑल अबाउट आपका अकेला कभी नहीं होता, पहले तो ये कॉन्सेप्ट रेनू दिमाग में रखो। पास्ट परफेक्ट में हमेशा 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 पास्ट सिंपल का कनेक्शन है, यानी अगर आप सोचो तो पास्ट परफेक्ट का अकेले कोई वजह नहीं है, पास्ट कॉन्टिन्यूस अकेले आ सकता है, उसे जरूरत नहीं है किसी की, उसके साथ आना है आ जाओ, मना नहीं करेगा, पर उसे अकेले भी कोई दिक्कत नहीं, कोई डर नहीं है। पास्ट सिंपल तो अकेले खेलता ही खेलता है, उसे तो किसी की जरूरत है ही नहीं है। पर गाइस पास्ट परफेक्ट ये अकेले कभी नहीं आता, इसे किसी की जरूरत है, के साथ कोई होना चाहिए, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो द सेंटेंस स्ट्रक्चर इज दिस वन, ठीक है? तो आप बेसिकली इसके अंदर हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। आपने प्रेजेंट परफेक्ट अगर याद करा हो तो उसमें हैज प्लस थर्ड फॉर्म था, इसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर एक चीज का खास ख्याल रखना आपको कि इसके अंदर आप जो काम पास्ट में हुआ, जो भी काम पास्ट में हुआ उससे पहले क्या क्या हो चुका था ये बताओ। जैसे मैंने इस क्लास को ज्वाइन करा, ठीक है? मेरी क्लास ज्वाइन करने से पहले कौन कौन ज्वाइन कर चुका था, ये पास्ट पर। तो इसमें गाइस हमेशा 2 काम होते हैं, हमेशा 2 काम होते हैं, एक काम पहले होता है, एक काम बाद में होता है। जो काम पहले होता है, ये देखो इसमें हमेशा क्या होता है, इसमें 2 काम होते हैं, एक होता है काम 1, ठीक है? एक होता है वर्क 2, ठीक है? अब ये वर्क कौन सा है? पहला वर्क है, Past perfect. नहीं नहीं, पहला वर्क है, Past जैसे simple. रुक जाओ, पहला वर्क है आई ज्वाइन, That's it. मैंने ज्वाइन करा, ठीक है? सेकंड वर्क है यू ज्वाइन, आपने ज्वाइन करा, 2 लोगों ने ज्वाइन करा। अब किसी ने पहले करा होगा, किसी ने बाद में किया होगा, तो पहले किसने करा, मैंने या आपने? I joined. आई I ज्वाइन। joined. तो गाइस ये जो पहले वर्क होता है, आई वाला पहला वाला, ये हमेशा पास्ट परफेक्ट होता है, इसे आप कहते हैं पीपी, ठीक है? पीपी, ठीक है? और जो काम बाद में हुआ, ज्योति मैम ने बाद में ज्वाइन करा, तो इसे कहेंगे पीएस, पास्ट, Past simple. ठीक है? एक और तुम्हें एग्जांपल देती हूँ, अगर इससे कंफ्यूजन अभी क्लियर नहीं हुई तो एक और एग्जांपल देती
देखो, आप एक शादी में गए, ठीक है, शादी में आप पहले गए या बाद में गए? बाद में, पहले बाद में, शादी थी मैम। ठीक है, पहले तो आप गए सेकंड नंबर पे, ठीक है, पहले नंबर पे कौन गया? मैं बाद वाले बैठी पहले नंबर पे बाकी के मेहमान गए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर आपका, आप क्योंकि बाद में गए थे तो दूसरा काम जो होगा, यू गो, ठीक है, ये हो गया यू नो दूसरा काम, आप बाद में गए थे, और बाकी के जो मेहमान थे, अदर को, वो पहले गए। तो गाइस जो पहला वाला होगा वो हमेशा हमेशा पास्ट क्या होगा? परफेक्ट, पीपी, और दूसरा क्या होगा? पीएस। समझ रहे हो? दूसरा मैम वाला ये है, पीपीपी, मैम ये पी और पीपी और पीएस की फुल फॉर्म क्या है? पास्ट पीएस परफेक्ट, है पास्ट पास्ट। सिंपल। वेरी गुड, ऑप्शन, परफेक्ट पास है सिंपल। एब्सोल्युटली, पास्ट परफेक्ट, पास्ट सिंपल, सिंपल। मैम बट हमें कैसे पता चलेगा कि ये फर्स्ट और ये सेकंड, देखो, ये मतलब जो पास्ट? काम, हाँ, जो काम पहले हुआ है, जो भी काम पहले, देखो, मैं जब शादी में गया, मेरे मामा मामी पहले ही आ चुके, तो पहले कौन आया? मामा मामी या आप? मम्मी। मामा मामा मामी। मामा मामी। तो कैसे बनाओगे? माए, मैं मैटरनल अंकल नहीं लिख रही, मामा मामी ही लिख रही हूँ। मामा एंड एंड मामी, मामी। क्योंकि ये पहला काम है, पहले मामा मामी आए, मैंने पीपी लिखा है, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का रूल क्या होता है? क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब ठीक की है, है थर्ड फॉर्म। हार्ड फॉर्म, हैड कम, उसके बाद आप लगाओगे रेडी सब्जेक्ट बिफोर, प्लस उसके बाद बिफोर। ऑब्जेक्ट। अब फिर आप गए तो आप है पीएस, बिफोर आई आई केम, हो गया, सिंपल। मैं बाद में गई तो मेरा सेकंड फॉर्म आया, वो पहले गए तो उनको ज्यादा नंबर दे दो, थर्ड फॉर्म दे दो। तो उनको जो पहले कोई काम निपटाते हैं वो अच्छे बच्चे हैं, उनको थर्ड नंबर मिलेगा, ज्यादा नंबर, 3 रुपए मिलेंगे या 3,000 रुपए मिलेंगे। तुमने बाद में करा है, तुम्हें खाली 2,000 रुपए। तो जो काम बाद में कर रहा है उसे दूसरे नंबर पे रखो, ठीक है, उसको कम पैसे दे दो, 2 रुपए दे दो। जो काम पहले कर रहा है उसे 3 रुपए दे दो, ज्यादा पैसे दे दो, ठीक है, यस यस मैम। गॉट इट। सिंपल। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। घर में मम्मी ने खाना बनाया, ठीक है, अब आप कहते हो मेरे खाना खाने से पहले ही सब लोग खा चुके थे। पहले खाना किसने खाया? मैम पहले किसने? फादर। फैमिली मेंबर। फैमिली ने, ठीक है, फैमिली ने पहले खाया, तो पहला नंबर हो गया फैमिली का, फैमिली ईट, ठीक है। बाद में खाना किसने खाया? फैमिली हैड रिटर्न। बाद में खाना किसने खाया? मैंने। बिफोर मी आई। आपने, ठीक है, आई ईट, यहाँ पर आई ईट, ठीक है। तो अब जो बाद में खाएगा, उसने गंदी बात करी है, वो अकेले बैठ के खाएगा, उस बेचारे को आप दे दो सेकंड फॉर्म, ठीक है, माय उसको आप, फैमिली हैड। ठीक है, सेकंड फॉर्म। अब क्योंकि फैमिली ने पहले ही खा लिया था तो उन्हें दे दो हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो अब बताओ सेंटेंस क्या बनेगा, बोलो जरा। माय फैमिली फैमिली हैड eaten. माय Family फैमिली had eaten। eaten माय हैड फैमिली before I came. हैड ईट eaten। Before I बिफोर came. आई eaten ईटन। before आई एट। I ate। Ate. एब्सोल्युटली, आई फैमिली मैं हैड ईटन वीटन बिफोर आना आई, चाहिए। है बेटा, मैं वीटन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मैम ईटन। तो वही तो आया ईटन है इज बेटा, ईटन ही तो आया है, देखो ये रहा ईटन, ओके। ठीक है, माई फैमिली हैड ईटन बिफोर आई एट।
यानी पहले परिवार ने खाया, बाद अच्छा। में मैंने खाया। मैंने खाया। समझ गए? इजी है। यस। यस मैम। यस चलो मैम। अब आप मैम एक हाँ बोलो। जैसे ये होता है ना कि पहले आप खा लो फिर मैं खा लूंगी बाद में, इसका हम्म कैसे जानकारी मिलता है? हम्म ये देखिए, इसमें अभी तक ना किसी ने खाया है रेनू, और ना ही अभी तक किसी ने मुंह में डाला है। अभी ये काम जी होगा, तो ये फ्यूचर हो गया बेटा। जी। यहाँ पे आप फ्यूचर की बात करें, यहाँ अभी पास। आप सारा पास्ट कर रहे हो। तुमने खाया वो भी yes, पास हो गया, और तुम्हारी फैमिली ने खाया वो भी पास हो गया, दोनों ही पास पास। हो गए, है ना? तो वहां पर आप जी सारा का सारा या तो सेकंड फॉर्म डालोगे या हैड प्लस थर्ड फॉर्म डालोगे। तुम खा लो बाद में मैं खा लूंगी, ये तो ना तुमने अभी खाया ना मैंने अभी खाया, तो ये फ्यूचर है दोनों। इसके बारे में हम बाद जी में मैम। बात करेंगे। Got it? ओके मैम। अभी या आप ये परफेक्ट मैम। देखो, मैं आपको एक सिंपल सा सीधा सा इजी सा बता देती हूँ। ये देखो, अभी अगर हम ध्यान से देखें तो ये है हमारा टाइम। ठीक है, ये हमारा टाइम। Yes, यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ये प्रेजेंट। मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, मैं लिख रही हूँ, आप देख रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, और आप जब बोल रहे हैं तो मैं सुन रही हूँ। ये क्या हो गया? सारा प्रेजेंट। present। अब इसी के अंदर डियर आपका होता है पास्ट। ये हो गया तुम्हारा, इससे जस्ट पहले जो भी काम हुआ ना, जस्ट पहले ये सारा का सारा पास्ट है, पास। जिसे आप पास्ट सिंपल कह सकते हो। ये सब पास्ट सिंपल। लेकिन लेकिन अगर मैं इस काम के रेफरेंस से, याद रखना रेफरेंस ले रही हूँ, इस यस काम के रेफरेंस में इससे पहले क्या क्या हुआ, इससे पहले क्या क्या हुआ ये बात करूंगी, तो बेटा वो पास्ट परफेक्ट होगा। मैं प्रेजेंट की बात ही नहीं करी। और इधर का जितना भी है गाइस, ये वाला, ये पूरा का पूरा फ्यूचर है। ये पूरा फ्यूचर है जिसकी अभी हम बात नहीं करेंगे बात। ओके मैम। समझ गए? यस मैम। ग्रेट। गाइस जस्ट 1 मिनट, एक कॉल आ रहा है, मुझे 1 सेकंड का टाइम। ओके मैम। हेलो। यस गाइस। Yes, guys. So, is it clear with everyone? यस Clear. मैम। Okay. यस मैम। Now, Satvik, आपने अपना बर्थडे मनाया। कब था आपका बर्थडे? When was your birthday? मैम माय बर्थडे वाज 17th अगस्त। Okay, चलिए। और सात्विक ने अपना ऑन 17th अगस्त, सात्विक ने अपना बर्थडे 17 अगस्त को मनाया। तो गाइस ये पास्ट टेंस हो चुका पूरा, Yes. यस मैम। है ना? ये है आपका पास्ट सिंपल। ठीक है, ये पूरा 17 अगस्त को जो जो हुआ, ध्यान से सुनना। 17 अगस्त को सात्विक के बर्थडे में जो जो हुआ वो सारा क्या है? पास्ट सिंपल। सारा आप किस में बोलोगे? सेकंड फॉर्म में। ठीक है ना? लेकिन इस 17 अगस्त को मनाने के लिए जो तैयारियां करी थी, जितनी भी प्रेपरेशंस करी थी, जितनी भी प्रेपरेशंस आपने की थी, उसका केक आया, मम्मी ने घर की सफाई की, खाना पीना बनाया, दोस्तों को इनवाइट करा, रिश्तेदारों को इनवाइट करा, जितना भी करा, जितना भी, वो सारा क्या होगा तुम्हारा? Past perfect. परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट। लवली, वो होगा पास्ट परफेक्ट। ये सब कुछ 17 अगस्त से पहले का है। जो भी 17 अगस्त को या उसके बाद हुआ वो सब कुछ सेकंड फॉर्म है, दोनों ही पास्ट। पर एक कम वाला पास्ट है और एक बहुत ज्यादा वाला पास्ट है। एक पास्ट से भी पहले का पास्ट है, तो पास्ट से भी पहले का जो पास्ट है वो पास्ट परफेक्ट।
गॉट इट? Got got it. it, ma'am. ऑफ कोर्स आपको बर्थडे मनाने के लिए केक पहले से लाना पड़ेगा, दोस्तों Yes. को पहले से इनवाइट करना पड़ेगा, खाना पहले से पकाना पड़ेगा, डेकोरेशंस और सफाइयाँ पहले से करनी पड़ेगी। दोस्तों के आने के बाद थोड़ी ना होगा ये सब कुछ। तो ये जो आप तैयारियां कर रहे हो वो सब पास, ठीक है? Got it, ma'am. ओके Got it, ओके ma'am. गाइस, गुड गुड गुड। अब मैं आप तीनों से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछती हूँ। सात्विक, इन विच क्लास आर यू? Ma'am, I am in third class. थर्ड क्लास। चलिए, अभी बहुत छोटे हैं, यू आर क्वाइट यंग, पर फिर भी रेनू एंड लक्ष्मी मैम, अपने 12th क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपने क्या क्या तैयारियां की? एंड सात्विक, आपने सेकंड क्लास में अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्या क्या तैयारियां की थी? आप यहाँ पर आपका 12th क्लास और सात्विक का सेकंड क्लास दोनों पास्ट हैं, एम आई क्लियर? दोनों पास्ट है ना? Yes, ma'am. लेकिन आपने जब फाइनल के एग्जाम्स दिए थे मार्च में, उससे पहले आपने बहुत तैयारी की होंगी, आपने नोट्स बनाए थे, आपने एक्स्ट्रा क्लास अटेंड की थी, सैंपल पेपर्स खरीदे थे, 10 ईयर सॉल्व किए थे, आप रात रात भर बैठ के पढ़े थे, आपने ट्यूशंस लगवाए थे, ये सब कुछ पास परफेक्ट। बाहर खेल रहा हूँ। हम्म? बाहर रोड पे। इज इट क्लियर? Yes, Clear. ma'am. Got it, ma'am. या सिंपल, ठीक है? सो ये आपका रहता है पास परफेक्ट। मैम जैसे मैं किसी कंपनी में जाती हूँ इंटरव्यू के लिए, तो वो मुझसे बोलता है कि आप इससे पहले किस कंपनी में काम करते थे, वो हमारा पास सिंपल होगा। और वो बोलेंगे उससे पहले किस कंपनी में काम करते थे, वो हमारा पास परफेक्ट होगा। चलिए, अब इसका भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ डियर। ना तो ये पास सिंपल होगा, ना ही पास परफेक्ट होगा, ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट। अब आप कहोगे मैम कैसे? जो कंपनी यस में आपने काम किया है वो एक्सपीरियंस जिंदा है ना, यस मैम। बस प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे अब पर हम आपने जो किसी और बर्थडे कंपनी में गए हैं। चाहे किसी और कंपनी में हो, मैंने आपकी लंदन एकेडमी में आने से पहले कई जगह और पढ़ाया, ठीक है, काफी जगह मैंने जॉब की है अपना, मतलब काफी अच्छा मेरा लॉन्ग करियर है इस लाइन में। बहुत बच्चे ट्रेन कर रही हैं, अराउंड अराउंड ज्यादा नहीं 20 से 25 हजार बच्चे मैं ट्रेन कर चुकी हूँ आज तक। पर डियर, वो मेरा पास्ट नहीं है, वो मेरा प्रेजेंट है। अभी भी देखो, मैंने कर चुकी हूँ कहा, यानी मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे हर तरह के बच्चे को हैंडल करना आता है। सो जितने भी एक्सपीरियंस होते हैं ट्रेनिंग, वो सारे प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं, वो पास्ट नहीं होते। पास्ट क्या होता है? जिनसे कनेक्शन खत्म। अब जैसे सात्विक ने 17 अगस्त को बर्थडे मनाया, सात्विक को गिफ्ट मिले, सात्विक ने वहां पर एंजॉय करा, अब उससे क्या ही लेना देना है? अगला साल, अगला बर्थडे, नया तरीका, नए लोग, नए गिफ्ट, नई केक, सब कुछ नया होगा। पर आप जो एक्सपीरियंस पिछली कंपनी में लेकर आई हैं वो आज भी आपके लिए मैटर करता है। उसी एक्सपीरियंस के थ्रू आपको ये नॉलेज आई कि ये काम कैसे करें। एम आई राइट? यस Right. मैम। तो अगर आपके बॉस या आपके एचआर आपसे पूछ रहे हैं इन विच कंपनी हैव यू वर्कड बिफोर, तो आप कहेंगे आई हैव वर्कड इन। हाँ, हैव आएगा, हैड नहीं आएगा। कहीं पे भी अपना क्वालिफिकेशन ध्यान रखना। चलिए, ये भी क्लियर कर देती हूँ मैं। देखिए, जब भी आप अपना क्वालिफिकेशन बताएंगे, जब भी आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, आई हैव जी बिल्कुल मैन, बिल्कुल, ठीक है। जब भी आप अपने अचीवमेंट्स के बारे में बताएंगे, मैंने यहाँ फर्स्ट प्राइज जीता है, मैंने यहाँ अवार्ड जीता है, यहाँ पे मैंने मेडल जीता है, ये सारी की सारी चीजें सब 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 प्रेजेंट परफेक्ट, सब प्रेजेंट ओके प्रेजेंट। मैम हाँ जी, मैम 1 मिनट। जी बिल्कुल। तो दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट। गॉट इट मैम। वेरी गुड। तो कभी भी आप रिप्लाई जो करोगे रेनू, आप कहोगे आई हैव वर्कड इन आई हैव मल्टीनेशनल कंपनी, आई मैम हैव 1 डन मिनट। दिस जॉब, आई हैव डन दैट जॉब। तो आप सारा मैम कैन हैव यू है। हाँ मैम बोलिए, कैन यू शो दिस वन, मैम लास्ट स्लाइड? या दिस वन। यस मैम। ओके,
I'm done. ग्रेट, लवली। सो आई होप अब ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए आपको कि पास्ट सिंपल कब आएगा, पास्ट परफेक्ट कब आएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कब आएगा। इज इट क्लियर? यस मैम। Clear, Yes, got it. वंडरफुल, वंडरफुल। अब अगर मैम आपको हाँ जी, मैम जो ये क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और अचीवमेंट है, ये मैम ये क्या है? बेटा आपने आज तक जितनी पढ़ाई की है, जैसे सेकंड क्लास कर लिया आपने, यस मैम। सेकंड क्लास की बदौलत ही थर्ड क्लास में आए हो, यस मैम। तो आप यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करोगे। आई हैव डन माई सेकंड क्लास फ्रॉम सो एंड सो स्कूल। ठीक है, एक्सपीरियंस। आपको पता चल गया है बैट बॉल कैसे खेलते हैं? नो मैम, मम्मी को पसंद नहीं। अच्छा चलिए, आपको क्या पसंद है? फुटबॉल। फुटबॉल। तो आपको पता है फुटबॉल कैसे खेलते हैं? यस मैम। आपको पता है कि चाय कैसे बनाते हैं? यस मैम। आपको पता है घर में सफाई कैसे करते हैं? यस मैम। सारा आपने किया हुआ है, भूल गए क्या ये सब कुछ, कि आता है अभी भी? मैम एक बार करा था। करा है, आता है? यस मैम। कर लोगे दोबारा? नो मैम। बताओ जल्दी, कर लोगे दोबारा? नो मैम। भूल गए ने? मैं भी याद है लेकिन कर नहीं पाऊंगा। नहीं नहीं, अगर मैं आपसे कहूँ फुटबॉल खेलो तो खेल पाओगे? यस मैम। हाँ, मैं भी तो बेटा ये एक्सपीरियंस है। जिस काम को कर पहली बार जब आप करते हो घबराहट होती है, नहीं आता, पर जिस काम को कर लेते हो और वो सीख जाते हो और दोबारा कर सकते हो 36 बार, 1000 बार, लाखों बार, फिर से कितनी भी बार करवा लो। अब जैसे लक्ष्मी मैम एंड रेनू रोटी बनाना सीखा नहीं था, आ गई, अब हमसे कभी भी रोटी बना लो, ये हमारा एक्सपीरियंस है। ठीक है, ऐसे ही रेनू पिछली कंपनी में, लक्ष्मी मैम पिछली कंपनी में जो भी सीख कर आई हैं, क्या वो भूल गई? नो No, मैम। madam. ऑफ कोर्स नॉट। तो वो एक्सपीरियंस हो गए आपके सारे। अचीवमेंट, जो भी आपने हासिल किया, आप फर्स्ट टाइम, आपने कहीं गोल्ड मेडल जीता, आपने सर्टिफिकेट जीता, आपने जो भी जितना भी हासिल किया, वो सब कुछ आपको बोनस मिला, आपको जो जो आपकी कामयाबी की राह आपकी जिन्होंने बनाई, वो अचीवमेंट होते हैं। तो गाइस ये कभी भी पास्ट में नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, क्योंकि या आपको मैम। इनसे अभी भी मतलब है, ये आप भूले नहीं है, सबसे बड़ी बात भूले नहीं। अब मुझसे कोई कहे ज्योति मैडम ने चाइनीज किया था, नाउ मैं उसे पास्ट में बोलूंगी, क्यों भूल गई? आ, आज की डेट में आप मुझे बोलो ना मैम चाइनीज में बात करो, तो मैं वो इंसान हूँ जिसने चाइनीज में टॉप किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आज की डेट में नहीं आता। क्यों? आसपास चाइनीज बोलने वाले नहीं थे, कभी चाइनीज की जरूरत नहीं पड़ी, धीरे 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 वीक होता गया। अब आज की डेट में आप पूछते हो, तो मैं कहूंगी आई लर्न चाइनीज, मैंने चाइनीज सीखी थी भाई साहब, अब नहीं आती, ये मेरा पास्ट हो गया। लेकिन 10th क्लास मैंने चाइनीज से बहुत पहले की थी, चाइनीज मैंने करी 12th के बाद, सॉरी ग्रेजुएशन के बाद की थी। हाँ, चाइनीज मैंने ग्रेजुएशन के बाद की थी, यानी 10th क्लास करने के भी 5 साल बाद। तो भी चाइनीज को मैं पास्ट कहूंगी, जबकि 10th मैं कुछ नहीं भूली अपनी 10th का, मैं 10th के बच्चे पढ़ा सकती हूँ, तो मैं कहूंगी आई हैव डन माई 10th क्लास। सो ये डिफरेंस है। ओके मैम। ठीक है, तो जो चीज भूल गए, नहीं है यार, दिमाग से निकल गया, एक्स वाई जेड कुछ भी है, आप उसको पास्ट कर लो। लेकिन अगर वो चीज आज भी कनेक्शन में है, मुझसे आप 10th के चैप्टर मैथ्स का हो, साइंस का हो, इंग्लिश का हो, आप पूछिए मुझसे, मैं अभी किसी भी बच्चे को पढ़ा सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं इसमें हैव कहूंगी। ठीक है, लेकिन चाइनीज, अब मेरे को दो चार शब्द तो पता है, पर ज्यादा मैं एक फ्लुएंसी के साथ चाइनीज पढ़ना, बोलना, समझना, बातें करना ना, भूल गई। तो मैं यहाँ पे पास्ट टेंस का यूज करूँ। गॉट इट? यस मैम। यस मैम। सो दिस इज हाउ वी डू तीनों चीजें। ठीक है, अब अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गया है, आपने अच्छे से बढ़िया से कर लिया है, तो रेनू ने, लक्ष्मी मैम ने और सात्विक ने अपना बर्थडे मनाया है। ठीक है, किसी भी डेट पे बनाया हो, मुझे सात्विक का पता है 17th अगस्त, रेनू ने भी अपना बर्थडे मनाया होगा किसी पर्टिकुलर डेट पे, और लक्ष्मी यस मैम ने मैम। भी, है ना?
उस बर्थडे को मनाने के लिए आपने क्या क्या तैयारियां की थी, जो भी प्रेपरेशंस आपने की थी, वो आप मुझसे शेयर करो अभी. What had you done? Now see my question. My question is, what had you done? देखिए, past tense, past perfect ही है. What had you done to celebrate your birthday? अब आप कम से कम इस पे 10 सेंटेंस बना के अभी मुझे सुनाएं, और फ्लुएंटली बात करेंगे तीनों लोग. So what had you done to celebrate your birthday? Me, madam. Can I speak? Sure, start. I had I invited वन बाय वन बेटा. पहले लक्ष्मी मैम को बोलने दीजिए, सात्विक फिर आप बोलिएगा, सात्विक है को ना? बोले बाद में. ठीक है, सात्विक आप बोलिए. I have the I हैव नहीं, have हैव नहीं I बेटा, have हैड. done I have done preparation for my birthday and my father bring cake. एक It मिनट. was माय फादर, एक सेकंड. माय फादर हैड ब्रॉट मी केक. had brought me cake and it was very big and delicious. I I had I and I and my sister had invite my friends for the party. इनवाइटेड बेटा, Invited बी केयरफुल. my friends for the party. They were very they were very happy, and I I had my mother called mother called the relations the our family members and they come in my party. After all the people joining the party, we enjoy a lot of there. We play two games. बेटा एक मिनट, सुनो सुनो सुनो. मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि पार्टी वाले दिन क्या हुआ. मैंने ये पूछा कि पार्टी से पहले क्या क्या हुआ. वो सारा पास्ट परफेक्ट है. ध्यान से आपको सारे पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस बोलने. बोलिए. मैम इनवाइट करने के बाद हो गया प्रिपरेशन. आपकी मम्मा ने डिश तैयार किए होंगे, आपने घर सजाया होगा, ये सब कुछ पास्ट परफेक्ट. सारा बोलो. मैम वापस बोलूं? चलिए, आप एक बार वापस प्रिपेयर करिए, तब तक हम लक्ष्मी मैम को सुनते हैं. यस मैम, बोलिए. I had invited my staff. I had madam booked. वेरी गुड. I had enjoyed with my नहीं, गलत जा रहे हो. नहीं. आपने अपने बर्थडे वाले दिन क्या किया? मैं हाँ. नहीं पूछ रही हूँ. हाँ, मैं पूछ preparations. रही हूँ बर्थडे से पहले क्या किया. हाँ, actually booked hotel हाँ, I had booked hotel. and I had decorated hotel staff. Very good.
hotel staff had decorated the hotel. हाँ, hotel staff had decorated The hotel. hotel. Very good. I had ordered cake. Okay, wonderful. I had arranged wonderful party. Okay, lovely. I had Yes. done, ma'am. Okay, fine. Now, Renu, it's your turn. I have prepared. One sec. Renu, it's your turn, dear. Hello everyone. Hmm. I had shopping in my birthday. I Yes. had done shopping. Okay, I had done shopping in my birthday. I had invited my friends and senior manager. I had ordered the cake. I had I had oh, I had purchased new dresses. Okay, very good. Keep it up. और बोलिए. I had मतलब मैंने bought I had bought return gift. Excuse me, madam. Yes, that's I'm it, ma'am. listening. Correct. Speak once again. मतलब I had purchased return gift. Sorry. Okay. Wonderful. I had purchased written gifts. Awesome. Can I speak? Yes, you can. I Speak up. my father. Hello everyone. The topic is what had you done to celebrate birthday? So I invited I book a banquet hall for I my had booked. I had booked a banquet hall for my party. I invited my I had friends. invited. I had invited my friends and the and all my relatives. The banquet hall was lavish. Sorry, grandeur, and its food was Lavish. I like it so much. We bring a very big cake for We had brought. बेटा गड़बड़ कर रहे हो. enormous. We had brought an enormous cake, and it was very delicious. Okay. And we take returned We gift. had We had taken. we had to Taken. we have taken return gift for before starting the party, and that's it. Okay, that's wonderful. So अब आपको past perfect में कोई doubt है तीनों में से किसी को? No, ma'am. Great job. Now No, I hope ma'am. you guys will start speaking it wonderfully without any trouble, without any confusion. Make one thing sure. जितना भी आप यहाँ पर सीख रहे हैं
अगर आप इसे अपनी डे टू डे लाइफ में नहीं इन्वॉल्व करेंगे तो डिफिकल्ट होगा. सो कीप ऑन स्पीकिंग सो दैट इट कैन बी इजी फॉर यू टू बिकम फ्लुएंट. मैम टुमारो. यस. मैम हम इसको कैसे बोलेंगे? द डॉग वॉक. मैम इसको कैसे बोलेंगे? द कुत्ता वो मैम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वो कुत्ता भौंक रहा था. भौंक रहा था तो बेटा पास्ट कंटिन्यूस हो गया ना. द डॉग वाज बार्किंग एंड डॉग हैज बार्क्ड. डॉग हैज बार्क्ड व्हिच मींस कुत्ते ने भौंक लिया है, यानी अब वो काम उसने बंद कर दिया है. ठीक है, अभी आज थोड़ी देर पहले बंद किया है, कानों में अभी भी आवाज उसकी गूंज रही है, तो ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट होगा. अगर मैम कुत्ता सुबह मैम विंग्ड मतलब विंक मतलब होता है आंख मारना. करेक्ट. WINKD. जी, आंख मारना. ठीक है. मैम चलो. विम्पर्ड. बोलो क्या कह रहे हो आप. मैम विम्पर्ड. विम्पर्ड. WHIM विम्पर्ड की बात कर रहे हो ना. यस मैम. ओके फाइन. सो विम्पर्ड मीन्स बहुत धीमी आवाज में दर्द के कारण रोना. बहुत धीमी ऐसे करके. ठीक है, बहुत धीमी आवाज में करहाते हुए रोना. दैट इज विम्पर. ओके मैम. सॉफ्ट सी आवाज में. ओके मैम Got दैट्स it? इट. Okay, beta. Now, let's talk about your speaking activity. So tomorrow, you guys will be speaking a story and कोशिश करिएगा आपकी स्टोरी में पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट तीनों चीजें हो, तीनों एलिमेंट हो. और कल हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. इज इट क्लियर? मैम Okay, got it. ब्यूटीफुल की जगह डिवाइन भी बोल सकते हैं किसी को. डिवाइन. डिवाइन इज एक्चुअली जो भगवान की तरफ से दिया जाए, बहुत ही डिवाइन. मैं किसके लिए बोलूं? डिवाइन इज ऑल अबाउट व्हेन यू आर स्पीकिंग अबाउट समथिंग फ्रॉम स्वर्ग. ईश्वर का. फैचिंग मैम. हाँ. शी इज फैचिंग. फैचिंग मीन्स प्राप्त करना. तो मैं ब्यूटीफुल के सिनोनियम चाहिए, डेफिनेटली आई एम गोना गिव यू वेरी सून. या ओके, डोंट वरी. या Okay, guys. So it's time to say goodbye. See you tomorrow. Good night, Good everyone. night, Good ma'am. night. Bye, Good night. guys. Bye-bye. Bye.